Hello, students. Today we are discussing two topics, synchronic and diachronic linguistics. So, before proceeding, whenever you discuss any topic, you should understand, you should set your mind that what aspects we are going to discuss here, because, of course, linguistics, that's a part of linguistics, and linguistics is the scientific studies of language. So scientific study means not normal study, not grammar, not vocabulary, but that is scientific study means uh, sound, words, right, combination of words, history, okay, then different sounds, and then IPA symbols, then IC analysis, so that we'll come to know the grammar, right, and how words are placed, uh, uh, how words take position in like in a sentence, right, how sentence is framed. So different aspects we discuss, but here, as far as synchronic and diachronic linguistics, so synchronic linguistics is the study of language, and synchronic is that's a static or descriptive study of language. Means we don't want to move before and after, we want to study of language which is going on right now, anytime. We can pick up anytime, we can go, we can study old English, we can study middle English, modern English, early modern, late modern, whatever. But then one period we uh, study of any language for one period, current time, or that in Shakespeare's time. Many student write research paper, dissertation, right. So then in their studies sometime they take one particular duration, particular time, and that suppose Shakespeare's English, you can write a research paper on Shakespeare's English, right, or that's a English language in the Elizabethan era, English language um in the Geoffrey Chaucer's era, right, 13th century, 14th century. So when we do any do study of a language or language for a particular time, that is called synchronic linguistics. Means okay, another thing is that when we do study, so what, a study of language, so for language, what we have to study, we have to study grammar portion, right, and then vocabulary, right, pronunciation, okay, and whatever we have studied in third year in the class. Let me revise your syllabus before these topics that we had started. If you remember, we had started our course from fourth unit, IPA symbols, right. Why? Actually it would be the first unit, IPA symbols, because this is a basic unit of language, right. Why? Because there are lot of discrepancies in words and sound, and that's why there is one sound and one symbol. It is decided by phoneticians. Phoneticians are who who do scientific study of sound. जो लैंग्वेज में साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करने वाले, उसके एक्सपर्ट्स आर कॉल्ड फनेटिशियन. तो उन्होंने क्या किया, दे हैव इन्वेंटेड 44 साउंड्स इन इंग्लिश एंड 44 सिम्बल्स. क्यों? क्योंकि 44 अल्फ़ाबेट्स इंस्टेड ऑफ 26 लेटर्स, दे हैव गिवन 44 साउंड्स, लेटर्स की जगह साउंड. क्यों? क्योंकि लेटर्स वर नॉट एनी इनफ to express the sound. GH is F, enough में GH is F, physics में PH is F, fickle में F is F, right. Lieutenant में there is no F, but then the LIE, right.
UTANT जो भी है, तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में एफ आता ही नहीं है, फिर भी एफ। तो लॉट ऑफ कर्नल में आर नहीं आता, बट देन COLONEL, कर्नल, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, बट द साउंड and spelling is totally different, no direct correspondence. That's why 44 sounds were invented. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। हमने पहले IPA सिम्बल्स देखे, जिनको फनीम्स भी कहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन को ग्राफीम कहते हैं ना। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल बताया क्लास में, PQBD सिर्फ डायरेक्शन एंड प्लेस ऑफ हाफ सर्कल और हाफ बबल इज चेंज, बट दैन साउंड इज चेंज, शेप इज चेंज। तो अगर ग्राफीम चेंज होता है तो फनीम भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने वो किया। उसके बाद हमने वी हैव सीन IC एनालिसिस। क्यों? क्योंकि हमें फाइनली जब वो एनालिसिस होता है सेंटेंस का, तो देन विल कम टू नो दैट हाउ सेंटेंस इज फ्रेम्ड, व्हाट द रिलेशन बिटवीन subject and verb and object, why first subject is taken, why after subject verb is taken, and then how adverbs are used for verbs. Something, many discussion we did in the class, right? Then we discussed history of English language. Why? Because what English is being spoken or studied today, it was totally different from old English. So how language was invented, how English language was invented, so that's the history of English language we studied. Then we studied accent, syllables, rhythm, intonation, morphology, phonology. बहुत सारा डिस्कशन हमने क्लास में किया। And one of the parts of linguistics is synchronic and diachronic. तो मेजरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज। दोनों केसेस में ये क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बट समटाइम वी डू स्टडी ऑफ लैंग्वेज फॉर वन पीरियड, एंड समटाइम वी स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री टू करेंट, है ना। तो जो हम सिर्फ एक पीरियड की स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, विच इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। और जो हम पूरा हिस्ट्री, व्हेन वी गो बैक एंड देन व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज़ कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। ये बेसिक डिफरेंस के माइंडसेट के साथ अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? In linguistics, synchronic analysis studies a language at a specific point in time. ये बस आप याद रखना कि कौन सी, ये studies a language at a specific point in time, while diachronic examines language change, कहाँ चेंज होती है, and evolution over time, क्या क्या चेंजेस आए, क्या एवोल्यूशन हुए पूरे पीरियड में। दैट इज द स्टडी ऑफ दैट्स अ स्टडी ऑफ दैट स्टडी इज कॉल्ड डायक्रॉनिक। अब यहाँ देखिए, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, सबको आपको बस यही टेक्स्ट पढ़ना है अच्छे से और ऐसा ही लिखना है एग्जाम में। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स फोकसेस ऑन अ लैंग्वेज एट इट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अभी क्या चल रहा है? I gave you example that many posters you must have studied that 90 घंटे में इंग्लिश सीखे। 90 घंटे मतलब 30 यानी 3 मंथ्स में, क्योंकि एक दिन का 30 डेज इन अ मंथ, सो 30 + 30 + 30, है ना, और 1 आवर पर डे। तो 90 घंटे मतलब 3 महीने में, और 3 महीने कंटिन्यूस, एक महीने में एक दिन में 1 घंटा अगर आप करेंगे तो आप 90 दिन मतलब 30 दिन में अंग्रेजी सीख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स मैंने भंवर को अमेध उधर पढ़े हैं, है ना। तो दैट इज़ व्हाट, in within very stipulated time, you want to learn English, right? You want to speak English, so that you will be taught synchronic studies. Synchronic linguistics means what's going on at this time, right? So that will be taught to you, like in this time,
Warna, SMS language, and small words and many things, right? So you have to be familiar with abbreviation. You have to be familiar with uh, with current slangs and many words. You have to be familiar with, right? So that proverbs, idioms, phrases, very short. That study, that approach is called uh, that is called सिंक्रोनिक. और उसी को स्टैटिक या डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बस एक फ्रीज, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव, उसको बस डिस्क्राइब करती है जो अभी चल रहा है. तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ऑन अ focuses on a language as it exists at a particular moment. जो अभी क्या चल रहा है बस वो बता दीजिए, ऐसा हम कहते हैं. ऑफन द प्रेजेंट, बट कैन ऑल्सो एनालाइज अ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल स्टेज. ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सिर्फ प्रेजेंट में क्या चल रहा है. आप एक पीस ऑफ एक ड्यूरेशन उठाते हो कि आप, इफ़ यू वांट टू स्टडी, आई गेव यू एग्जांपल शेक्सपियरियन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज इन एलिजाबेथन एरा, तो वो भी दैट विल ऑल्सो बी नोन एज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन सी लैंग्वेज चलती थी, कैसी चलती थी, कैसे वोकैब होती थी, कैसा ग्रामर होता था, कैसे साउंड्स होते थे, वॉल्स कैसे यूज़ होते थे, प्रोवर्ब्स क्या होते थे, फ्रेजेस क्या होते थे, ये सारी डिटेल स्टडी कर रहे हो. लेकिन यू आर डूइंग स्टडी ओनली फॉर पर्टिकुलर टाइम, कि आपने शेक्सपियरियन या एलिजाबेथन एरा में जो इंग्लिश चलती थी वो पढ़ रहे हो. तो दैट अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक्रोनिक, है ना. दूसरा, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स एम्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, है ना. ये क्या करते हैं? ये एम्स टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रूल्स of a language without considering its historical development. For example, if I say that that's a structure, है ना. So if I say that structure of language, common structure is subject plus verb plus object, right? And earlier, I am not sure, but earlier suppose हिंदी में कहते हैं राम, तो सब्जेक्ट हो गया, आम तो ऑब्जेक्ट हो गया, खाता है वो, यहाँ पोजीशन चेंज हो गई. हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इन ओल्ड इंग्लिश सेम पैटर्न वॉज फॉलोड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन वर्ब. बट राइट नाउ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलोड. दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना. एंड रूल्स, व्हाट रूल्स? दैट सपोज इफ आई से दैट राम goes ram goes for walking, है ना, for walking, right? So that's a goes. Why? Because present tense, s represent present tense, and subject is singular. So that's why here ram is singular. That's why we have put s with the verb. This is the rule. आप ये सारे examples quote कर सकते हो. So right now what's going on? Suppose you have joined one coaching, you have joined lingua franca, any coaching class, English coaching class, students sometime join, right? So within 90 days or within stipulated time, what they are taught? They are taught writing part, right, at spoken. So that in both the times, how these words are pronounced, what's the shortcut, what's the current, for example, the common vocabulary, right, and what are the short terms of abbreviation of this, right? This way they are taught, and they are provided some notes as well. This is, for example, if I give you example of university, so that is very city, not university, very city, है ना. तो between, ऐसा शॉर्ट टर्म होता है, between. तो ये these all also you have to be familiar with. SMS लैंग्वेज है we, अब केयर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो पूरा है we care for you, है ना. तो ये this is called, this language is also important nowadays. I have to teach in my coaching class. Suppose I run coaching class, and then within 90 days, why? Because this is SMS language, and my student
must be familiar with this term also, so that he'll be able to read or interpret messages easily. So that is called, that this approach is called synchronic, right? Third point is that examples include sorry, second में क्या था? Second was that's a aims to describe structure and rules of language without considering its historical development. कैसे ये वर्ड आया, क्यों वी केयर फॉर यू ऐसा लिखा जाने लगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं. अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, यू आर लर्निंग, दैट इज दैट अप्रोच is called synchronic linguistics. Now third point, examples include studying the grammar and vocabulary of modern English, है ना. अब इसमें क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश के एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे. आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ ग्रामर एंड वोकैबलरी, राइट. तो अभी क्या ग्रामर चल रही है, अभी क्या वोकैब है अकॉर्डिंग, सपोज डन, यू हैव रिटन डन, है ना. एंड अर्लियर पुराने स्टूडेंट होता तो वो लिखता आई हैव डन, राइट, डन. आजकल शॉर्ट टर्म चलता है, राइट. आपने इमोजी के थ्रू, suppose you have sent one emoji thumb, so that is done, or you are interested. So this is also part of non-verbal communication, that is also part of language. So all these will be taught in coaching classes, and this is the part of teaching, right. So that is that examples include studying the grammar and vocabulary. I shared one vocabulary and I would like to show you here so that you will remember the word. Wait a minute. Gibbling. I am in the morning only. I have shared one example and I would like to show you so that you will be able to remember. Okay, I give you here. That's a ha. Giblify. Giblify I shared in your group also. Giblify. So that's a Giblify. That is the dictionary meaning of the word is hot dust, right? So that's a Ghibli is a hot dust bearing wind of Northern America, right? This is the word which is actually which is being used frequently in the that's this word is actually being used in the uh, current time, right. So suppose I if I'm teaching in the coaching, so definitely I would like to give such examples as well. So this is the example which I have taught in the synchronic study. And last point is that is often descriptive, aiming to understand how the parts of language work together. Parts of language, parts of speech you must have heard. Parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb, है ना? And parts of languages, voice, narration, then proverb, then vocabulary, all are parts of language. So that how a language work together. Though we discuss a language, we are learning English, but in English we discuss grammar, vocabulary. In grammar, number of things we discuss, sentences, types of sentences, parts of speech, uh, than voice, narration, paragraph writing, and so many things. Why? Because that is I have to teach so that you'll be able to write and speak current format, right? Current for like able to write letter, messages, and all. So this approach is called synchronic, right? Another name of synchronic linguistics is descriptive or static. जो फिक्स है बस आपको उतना ही पढ़ना है, which is called synchronic. Now another topic is just opposite, which is called diachronic linguistics or historical linguistics. Here it's a lengthy process, and here when you would like to study
that's a language. Historical linguistics means from old to modern. कैसे? It studies evolution and changes in language over time. आप evolution कैसे language आज इतनी modern वहाँ से कहाँ से start हुई है, तो क्या changes आए over period of time, तो that approach is called diachronic, जो पूरी हिस्ट्री से अभी तक पढ़ रहे हो आप। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का यही है कि आप इवोल्यूशन एंड चेंजेस को पढ़ते हो, विच इवोल्यूशन एंड चेंजेस विच occurred over time. This approach is called diachronic. फिर it examines how language develop, क्योंकि आप I gave you example, one of the students of our college, she qualified entrance exam, and she has taken admission in Delhi University, where she is doing MA in linguistics. So she definitely she is studying because she shared syllabus with me, and in which she is studying linguistics in very detail. Why? Because she is studying history of language, how English was invented, other languages. ऑल्सो शी इज़ स्टडिंग, हिंदी भी पढ़ रही है वो। हिंदी कैसे आई? हिंदी की मदर लैंग्वेज है संस्कृत, संस्कृत से हिंदी आई, हिंदी की भी डॉटर लैंग्वेजेस है, कैसे आई, अभी कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या फॉर्मेट में क्या चेंज हुआ, फॉर्म्स में क्या चेंज हुआ, स्पोकन पार्ट में क्या चेंज, ये सारी स्टडी ये हम सब एग्जामिन करते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड diachronic, how language develop and how sounds and structures change. साउंड भी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है ना। तो वो जो साउंड है, जैसे आपने पढ़ा था कि मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, जब मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश बनी, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि दैट्स अ ग्रेट वॉवल शिफ्ट। क्यों? वॉवल जो लॉन्गर वॉवल्स थे which was not in use, instead of longer vowels, new generation started using short vowels. जो सबसे बड़ा रीज़न फ्रॉम मॉडर्न मिडिल टू मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल से मॉडर्न इंग्लिश बनने का ही कारण था ग्रेट वॉवल शिफ्ट। तो वो सारी स्टडी जो है कि कैसे साउंड में चेंज होता है, कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सेंटेंस का, विच इज़ कॉल्ड दैट दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड डायक्रॉनिक। जैसे कि मैंने बताया था कि शेल आजकल बहुत रेयर यूज़ होता है, नहीं तो पहले ऐसा होता था सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो जो शेल था वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो ये शेल प्लूरल के लिए यूज़ होता, सिंगुलर के लिए नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी विल इज़ कॉमन टू सिंगुलर और प्लूरल, ये चेंज आ गया है ना। तो ये चेंज कहाँ पर आया? ये स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। तो ये स्टडी क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप देना। ये दिस कॉल्ड डायक्रॉनिक एंड हाउ न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड और बोरोड, है ना। तो जो नए वर्ड्स आते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, ऑथर्स क्रिएट मैनी न्यू वर्ड्स, है ना। आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ चिलेक्स, चिलेक्स, है ना। चिलेक्स, चिलेक्स क्या है? चिल प्लस रिलैक्स, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, है ना। तो इन वर्ड्स का कैसे डेवलप होते हैं, राइट, कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे हम दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स को बोरो करके लाते हैं, है ना। परमानेंट नहीं है, पर उन वर्ड्स को हम थोड़ी देर के लिए, कि जैसे अगर मान लीजिए इन इंडियन कल्चर बारात कहते हैं हम, है ना। तो अगर हमको बारात, कोई इंग्लिश आर्टिकल लिख रहे हो आप, तो आपने इसको इटैलिक्स पे लिखा, और फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार पब्लिक जो वो होते हैं फिगर्स होते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उन्होंने अगर हिंदी में बोला तो उसका ऐसे इटैलिक्स पे उनका हिंदी कोट आता है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ जाता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन रहता है।
तो वो दैट इज़ कॉल्ड सेम, कि कोई वर्ड है जो वहाँ से हमने उठाया है किसी दूसरी लैंग्वेज से. आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल ऑफ वेस्टलैंड. तो वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है ना, वेस्टलैंड टी.एस. एलियट का है. ठीक है. उनकी लास्ट लाइन में वो कहते हैं दया दयावदम, ऐसा कुछ है उसका, है ना. मैं आपको बता दूंगी. दया दयावदम दम्यते, ऐसे 3 वर्ड्स हैं. और उन्होंने वो पोएम को जब वो एंड करते हैं तो उसमें दया दयावदम दम्यते ऐसा कुछ 3 वर्ड्स है ना. शांति ही शांति ही शांति ही, वो उन्होंने संस्कृत में ही लिखा है. क्यों लिखा संस्कृत में? क्योंकि उसका ट्रांसलेशन उनको इंग्लिश में वो फील नहीं समझ में आया. दैट्स व्हाई ही हैज़ टेकन द सेम एग्जाम्पल. ही हैज़ बोरोड द वर्ड फ्रॉम संस्कृत एंड देन सम्ड अप हिज poem Wasteland, world famous poem Wasteland, very lengthy poem, and 5th part of the language, that's the conclusion. And he concluded his poem with these couplet, Sanskrit couplet, that's a daya dayavadam दाम्यते. आई एम नॉट, ऐसा ही कुछ है ये, शांति ही शांति ही शांति ही. सो दिस इज कॉल्ड बोरोइंग वर्ड्स, राइट. सो दैट होल स्टडी is called diachronic studies. Then example, tracing the evolution of language from Old English to Middle English, or comparing different dialects. You know dialects means language which is made for one community of a language to understand their historical relationship. एक लैंग्वेज से ही बहुत सारे डायलेक्ट्स बनते हैं, है ना. और आपको पता होगा अगर कि लंदन डायलेक्ट्स जो था पूरे ब्रिटिश ने, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा आपको डिविएट लगेगा, ध्यान से सुनना, कि जो ब्रिटिश थे वो चारों डायरेक्शन में जा के कॉलोनीज बना रहे थे. और फिर जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ की लोकल लैंग्वेज को दे वर एक्सेप्टिंग अलॉन्ग विद देयर ओन लैंग्वेज. तो उससे नई नई लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स यहाँ से ले रहे थे, कुछ दे रहे थे. और इस तरह से उन्होंने पूरे बहुत सारे लोन वर्ड्स, बोरोइंग वर्ड्स इंग्लिश में भी लिए, और इस तरह लैंग्वेज इतनी फ्लोरिश हुई. तो वहाँ पे क्या अलग अलग कम्युनिटीज़ के डायलेक्ट्स बने, इवन इंग्लिश डायलेक्ट्स है बहुत सारे. तो बेस्ट, अब किसी को तो स्टैंडर्ड मानना था, तो जो लंदन डायलेक्ट्स था इट वाज स्टैंडर्डाइज, उसको उन्होंने स्टैंडर्ड माना. क्योंकि हर कम्युनिटी अपनी अपनी समझ से मालवीय बोलता है, कोई मालवी में भी बहुत सारे वेरिएशंस हो गए, है ना. तो लैंग्वेज के वेरिएशंस कैसे आते हैं? डायलेक्ट्स के कारण आते हैं. तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट दे आर टेलिंग दैट एग्जाम्पल स्ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड टू मिडिल, और कंपेयरिंग डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देयर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप. तो ये क्या होना, इन्होंने डिफरेंट डायलेक्ट्स को यूज़ किया कि उनका बेस, उनकी मदर लैंग्वेज क्या थी. ये तो डायलेक्ट है ना. तो डायलेक्ट किसी एक मातृभाषा से ही आता है. एक मातृभाषा नहीं, एक मदर लैंग्वेज से आता है. उससे संस्कृत है. अब संस्कृत से कितनी सारी लैंग्वेज, कहते हैं 12 भाषाएं तो संस्कृत से मेजर निकली है, और 12 से पता नहीं कितनी सारी. वो जो पूरी स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड diachronic, है ना. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट often relies on the comparison, comparing different stages of a language, or comparing different languages to reconstruct their common ancestors. तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस कि अलग अलग. जैसे हम अगर मान लो आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा तो वो डायक्रोनिक है. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पहले कैसे जर्मनिक ट्राइब्स आए, कैसे उन्होंने ब्रिटेन में अटैक किया, फिर वहाँ से ओल्ड इंग्लिश बन गई, फिर दूसरा नॉर्मेंडी आ गए, राइट. तो विलियम द कॉन्क्वरर, वो एक ही है, विलियम द कॉन्क्वरर और नॉर्मेंडी एक ही है. वो पर्सन आया, वो अपनी आर्मी लेके आया, उसने अटैक किया. वो अपने साथ में क्या लेके आया? अपने साथ में वो फ्रेंच, आई होप, हाँ, फ्रेंच लेके आया था. तो फ्रेंच लाया, तो नहीं, फ्रेंच नहीं, वो अपने साथ
दूसरा कोई एक लैंग्वेज फ्रेंच या लैटिन लेके आया, तो वहाँ पे वो उसके साथ मिक्स होके, यस फ्रेंच लेके आया, उसके साथ मिक्स होके नई लैंग्वेज बन गई। तो नई लैंग्वेज बन गई तो उसको हमने ओल्ड से मिडिल कह दिया। और उसके बाद जब मिडिल के बाद फिर कोई चेंज आए, तो ये पूरी स्टडी जो है इसको कि कैसे कैसे लैंग्वेज बदलती है, उसका फॉर्म चेंज होता है, राइटिंग फॉर्मेट चेंज होता है, हाउ फॉर्म एंड फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, ग्रामर, रूल्स, हाउ words are invented, how words are deleted, how words become archaic, all these this like this is the study which is known as diachronic linguistics, है ना. So that's a comparative study. We have to do comparison like old English and modern English, middle English, early modern, late modern, whatever, right? And then to reconstruct their common ancestors. And then if we find out different roots, so that's a main root is that is Latin or German, Latin or संस्कृत. संस्कृत से आज कितनी भाषाएं निकल गई. तो हम उसमें ये भी फाइंड आउट करते हैं कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स, उस रूट के कॉमन एंसेस्टर्स क्या से. एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. चलिए अब लास्ट में की कॉन्सेप्ट्स क्या है. Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist Ferdinand de Saussure from 1857 to 1913 is credited with making the distinction between synchronic and diachronic linguistics. लास्ट में बता रहे हैं, इसको आप बिगनिंग में लिख लेना कि Ferdinand de Saussure has contributed and has given the two concepts synchronic and diachronic linguistics. क्योंकि लैंग्वेज को स्टडी करने का द वे लैंग्वेज इज स्टडीड, देर आर टू वेज बाय विच वी स्टडी लैंग्वेज. वन इज सिंक्रोनिक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए समझता है, दैट अप्रोच इज कॉल्ड सिंक्रोनिक. एंड डायक्रॉनिक हिस्ट्री और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज. सो दैट दीज कॉन्सेप्ट्स वर गिवन बाय फर्डिनेंड डी सशोर. फिर complementary perspectives. While synchronic and diachronic approaches are distinct, they are also contemporary. तो ये बड़ा एक contradictory statement है, but yes, without अगर हम if we say that we are doing synchronic study of language, मुझे अभी पढ़ना है, फिर भी मुझे थोड़ी तो हिस्ट्री आपको बताना ही पड़ेगा. So वो मेरे डिस्कशन में आया सम वॉट, बट देन आई हैव टू टेल यू दैट दिस वर्ड इज रिप्लेस बाय दिस वर्ड, और नाउ अ डेज दीज फ्रेजेज आर कॉमन. अर्लियर these phrases were used like this something. So that is the same they are talking about, while synchronic or diachronic approaches are distinct. However, these are distinct, but then they are also contemporary. अलग होते हुए भी साथ साथ है, क्योंकि पैरेलल दोनों की ही स्टडी. हाँ, किसी में वेटेज ज़्यादा है कि हम अभी का पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा तो हिस्ट्री में जाना ही पड़ता है. और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी हम करंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये उनका कहना है. फिर अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेजेस करंट स्टेट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ इट्स हिस्ट्री. बेस नहीं रहेगा तो फिर करंट कैसे बनेगा. तो every development, so there is some base. Let me give you one example. Let me finish this point, then I tell you. And understanding its history requires knowledge of its current state. Until unless you don't read history, you will never be able to understand current status of any language, anything. History is very important. Why we do a study of history? What's the need of old history? What's the need of medieval history? Why not current time? Without history, there is no base. Without frame, suppose many things are like weaving. आपने देखी होगी, weaving होती है, साड़ी की knitting होती है, weaving होती है. तो वो जो फ्रेम होता है उसमें होता है, और उसके बाद उसको काट के हम निकाल देते हैं और साड़ी बन जाती है. बट दैट फ्रेम इज़ रिक्वायर्ड ना. तो वो फ्रेम, वो बेस इज़ रिक्वायर्ड. स्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में उसके कारण वो जो शेप में कोई चीज़ आती है.
तो दिस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल दैट वेन एवर विविंग इज़ डूइंग और एनी थिंग, सो वी नीड टू हैव वन फ्रेम जिसके अंदर हम बहुत सारे पुराने समय में लोग टेबल क्लॉथ बनाते थे, कुछ कुछ बनाते थे, थ्रेड से बनाते थे। तो उसमें एक फ्रेम होता था, एक सांचा होता था जिसमें बहुत सारे नेल्स लगे होते, खीले लगे होते, फिर उससे उसको बेस बना के और फिर उसमें वो टेबल क्लॉथ बनाते थे, कवर ढांकने का कवर बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद उसको काट के निकाल दिया, फिर वो बन गया, पर बेस नहीं है तो वो it is not possible. Similarly, we need to have base, then only you will be able to understand current language, है ना? तो contemporary perspectives भी समझना ज़रूरी है, लेकिन along with historical perspective. Then last point is chronic, as in chronic analysis is often considered prior to diachronic analysis. I gave you example, one of our students has joined Delhi University, right? She is doing MA in linguistics, right? So she cannot analyze language and she cannot start from history. First, she has to understand current uh, status or current structure and grammar and everything. Then only she'll be able to understand history. So same they are talking about. What they say that chronic analysis is often considered prior to डायक्रॉनिक एनालिसिस. पहले आपको सिंक्रॉनिक एनालिसिस ही करना पड़ेगा कि अभी करंट में क्या रूल्स है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्लैंग है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज taught or studied or used, right? And then you can go in the history, as the later presupposes that synchronic description at various stages of the development of the language have already been carried out. Same I have explained you, right? So I think you must have got little idea about synchronic, diachronic. Many of you have written me that it's a little bit confusing. So before winding up this video, let me tell you that don't worry. Synchronic linguistics and diachronic linguistics both are the study of language. दोनों में आप लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हो. एक में आप कर रहे हो जो अभी आप सिर्फ अभी इस समय जो हमने देखा था कि आप जब पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम पे आप स्टडी करते हो तो दैट इज़ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. ये फ्रेज़ आप याद रखो. क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में जब करते हो कि भाई अभी इस समय क्या चल रहा है, दैट अप्रोच, वो वाली जो लैंग्वेज की स्टडी है, दोनों लैंग्वेज की स्टडी है, पर ये वाली अप्रोच जिसमें आप स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में कर रहे हो उसको कहते हैं सिंक्रोनिक. वो आप चाहे ओल्ड इंग्लिश ले लो, मैंने अभी एग्जांपल दिया एलिजाबेथन एरा में कैसे इंग्लिश है, जॉफ्री चौसर से इंग्लिश कैसी है, उनके एरा में इंग्लिश. तो वो एक बस आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की जब स्टडी करते हो, दिस इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिक. और डायक्रॉनिक क्या है? तो डायक्रॉनिक एग्जामिन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, एंड चेंज. तो यहाँ पे डेवलपमेंट और चेंज को जब हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम उसमें क्या चेंजेस आए हैं, फॉर्म्स पे क्या चेंज आए हैं, फॉर्मेट में क्या चेंज आए हैं, वो स्टडी दैट इज़ कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. और उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे. तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस video. Thank you so much. God bless you.